नमस्कार। आर के त्यागी, गाजियाबाद एनसीआर दिल्ली। ओम सच्ची जनवाणी नमः चैनल पर आपका स्वागत है। प्लीज़ सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक कमेंट भी करें। साथियों, भारतीय मजदूर संघ के नेशनल सेक्रेटरी श्री गिरीश चंद्र आर्य, ऑल इंडिया सेक्रेटरी एंड इंचार्ज फाइनेंशियल सेक्टर, इन्होंने एक लेटर लिखा 20 फरवरी में श्री RS शर्मा, जनरल सेक्रेटरी AIBRWA दिल्ली, और इसकी कॉपी करी है KD खेड़ा जी जो पंजाब नेशनल बैंक के लीडर हैं, और श्री JN शुक्ला जी जो इलाहाबाद से हैं, प्रयाग वाणी से लिखते हैं, प्रयाग में रहते हैं। आगे लिखते हैं वो, डियर ब्रदर शर्मा जी, ऑन 16th February 24 we visited finance FMO and met the personal secretary of FM with a view to have an appointment with honorable finance minister so that we may hand over the memorandum passed in Dharna on 4th February 24 through a delegation. Honorable finance minister being preoccupied with travel appointment could not be fixed. However, we have handed over the memorandum to the personal secretary with a request to place the same before her and also convey our request to give us an appointment to meet at her convenience to enable us to explain our viewpoints on the matter. The personal secretary has taken the memorandum with an assurance to do the needful as requested. We shall continue our efforts in this regard. Greetings, और साइन है उनके नाम और कॉपी जैसे। इसको ये इन्होंने लिखा था, मेरे पास आया था, मैं आपको बता दिया। अच्छा, एक किसी में मैं अभी आगे कुछ और भी आपको डिटेल बताऊंगा इसमें। अभी मुझे शुक्ला जी का फ़ोन आया था, JN शुक्ला जी प्रयाग से, उन्होंने बताया तो मैं बताऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा NK पारिक हैं, आइबा पार्क के जनरल सेक्रेटरी हैं, सेंट्रल बैंक AICBROF के NK पारिक, इन्होंने एक भेजा है, वो उसी संबंध में है। ये भी आइबा पार्क के धरने के बाद जो गवर्निंग काउंसिल की बैठक हुई थी दिल्ली में, 2 दिन हुई, वो 21 तारीख में भी हुई, और CBPRO के जो कंस्टिट्यूएंट्स थे उनकी हुई 22 फरवरी 2023 को। ये धरने के बाद होनी थी और 21 तारीख की पहले दिन होनी थी। तो इसमें 150 के करीब मेंबर थे और हॉल बहुत भरा हुआ था, ऐसा बताया मुझे। अच्छा, इसमें ये लिखते हैं NK पारिक जी, फ्रेंड्स, ये ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी हैं। वी हैड 2 days गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ आइबा पार्क एट दिल्ली ऑन 21st and 22nd February 24. श्री AK नागर, श्री DS लहाने, श्री DS भदौरिया, श्री NK पारिक, श्री BS सिंधे, श्री अरुण अखोरी, श्री ML वर्मा, श्री KM भट्टाचार्य एंड श्री Sarath Kumar attended the meeting from our federation as office bearers and being state secretary. Shri K. Prabhakar could not make his presence due to his ill health. There was a marathon sessions on both the days. The senior officer bearers sitting on the dais and representative from different affiliates spoke at length on the matters of pensioners and retirees, especially regarding availability of group medical insurance policy on affordable premium, updation of pension, structured forum to discuss problems of retirees, etc., and had given valuable suggestions to adopt future line of action to achieve the desired results. Though the Dharna program of CBPRO was deferred due to cancellation of permission by Delhi police, but the atmosphere and sentiments among participants was so surcharged as if Dharna was going on inside the auditorium. This time representatives from newly affiliated BOB retired officers organizations also participated in meeting. Sri Deepak Basu, President of SBI Retirees Federation and who was present at the venue to attend CBPRO meeting, also addressed the gathering and declared to carry on the struggle of retirees jointly.
Sri Greece Arya National Secretary BMS Financial Services in his long 1 hour speech touched the prevailing scenario about ongoing wage revision talks and also shared the efforts made by him to take up the issue of bank retirees with officials of DFS in recent period and assured to pursue the pending demands of the retirees in the same spirit. He was very much overwhelmed to receive a warm welcome by House and to witness the gathering of enthusiastic senior bankers assembled from different parts of the country. Friends, Aiba Park General Secretary GC meeting at Delhi was a record success and will pave the way to take the movement of retirees with greater dedication and involvement. Aiba Park communication covering full proceedings of meeting will be available in next 2-3 days. रिगार्ड्स एन के पारिक जनरल सेक्रेटरी, ये इन्होंने लिखा है। और मैंने आपको पहले ही बताया था, दूसरी वीडियो में भी बताया था कि नेशनल सेक्रेटरी फाइनेंस सेक्टर के जो हैं ग्रीस आर्य BMS के, उन्होंने इनकी गवर्निंग बॉडी की जो मीटिंग थी उसमें भाग लिया और बहुत अच्छा जो है उसमें आदान प्रदान हुआ विचारों का और तमाम इशूज़ के बारे में उन्होंने बताया। हालांकि ग्रीस चंद्र आर्य से हम पहले भी मिल चुके हैं, फ़ोन पे भी कई बार बात हो चुकी है और मीटिंग भी हमने BMS ऑफिस में कुछ लोगों ने 10-12 लोगों ने की थी उनके साथ और सारे मुद्दे उनके सामने रखे थे और मैंने अपने मेमोरेंडम भी उन्हें दिए थे, कुछ डिटेल्स उन्हें बताई थी और इन्होंने भी कहा था फाइनेंस मिनिस्टर से हमारी बात करवाओ कैसे भी तरीके से टाइम लेकर, लेकिन अभी अरेंजमेंट हो नहीं पाया। और जो मेमोरेंडम था 4 फरवरी का जो धरना हमने लगाया था उसका भी अभी मेमोरेंडम वहाँ दे तो आए वो, लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर से डिस्कस नहीं हो पाया। वो जैसे ही होगा मैं आपको बताऊँगा। अच्छा, एक इसी संदर्भ में मेरे पास आया है, इसी संदर्भ में एक जो लिखा है इन्होंने मेरे पास, एक कुछ लोगों ने रिएक्शन भेजा है इसी संदर्भ में, वो मैं आपको बता देता हूँ। अब ये कहते हैं, इट इज़ ट्रू बोथ आइबा पार्क एंड AIBRF एंड आइबा पार्क आर ट्विंस एज फॉर एज पेंशनर्स एंड देयर डाइंग ग्रीवेंसेज आर concerned. Both have same skills, that is organizing useless dharnas, fashion parades, submission of memorandas, meetings and eatings, holding conferences of luxury and pomp and meeting in a cosmopolitan city once in 3 months, which provides 3 AC journey, taking Chukakers round politicians and releasing messages that contain several boostings that never happen. ये लोगों के रिएक्शन है। लोग क्या इनके यूनियंस के बारे में सोचते हैं, क्योंकि रिटायरीज यूनियंस का कोई रिकॉर्ड उतना वो नहीं रहा और कुछ उनको अचीवमेंट नहीं मिल रहे ना, तो इसलिए क्योंकि पेंशन अपडेशन, स्पेशल अलाउंस और हेल्थ इंश्योरेंस का मामला है, ये सब पेंडिंग पड़े हुए हैं। तो ये लोग बाग इस तरह की बातें इसलिए लिखते हैं। वो मैंने वहाँ तक की बात बताई थी और अभी लोगों का रिएक्शन बता रहा हूँ, लोग क्या रिएक्शन। हालांकि वो BMS के प्रति लोगों का ऐसा विचार नहीं पाया, खासतौर से AIBRF ने इस तरह का माहौल की रखा, उसके प्रति लोग कह रहे हैं। और आइबा पार्क भी साथ में ले लेते हैं, जबकि वो फिर भी थोड़े संघर्ष करती रहती है। और धरना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, ये इन्होंने फिर भी धरने के बारे में लिख दिया, पता नहीं कौन लिख रहे हैं, लेकिन लोगों के व्यूज़ हैं तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। आगे लिखते हैं, the heaping in communes of IBA, UFBU government, honorable finance minister and PM buttering wherever it is required and blaming warriors like Mr. Wankude, C. N. Venugopal by throwing mud on them who have been struggling for pensioners community despite their ill health and poor financial conditions. Let any leader say a single achievement or benefit procured for pensioners in 24-year पीरियड। हालांकि मैं इस चीज़ से सहमत हूँ जो ये लिख रहे हैं कि भाई ये 2 आदमी संघर्ष कर रहे हैं, बाकी सब ये बहुत लोग हैं संघर्ष करने वाले, और वो भी लीडर्स भी अपने तरीके से कर रहे हैं, ऐसा नहीं। संगठन का बहुत व्यापक प्रभाव होता है। एक्टिविस्ट कर रहे हैं, हम भी एक्टिविस्ट हैं, हम भी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कोर्ट में भी हम लड़ रहे हैं, कोई अकेले Wankude नहीं, लेकिन फिर भी वो उन्होंने, क्योंकि लोगों का जब दिमाग में कोई बात है और वो रिएक्शन दे रहे हैं तो मैं आपको शेयर कर रहा हूँ।
Even 1616 and 1684 case was won by Mr. G. Palani, retired AGM from BOB. Only a few have been taking part in cooperating with Mr. Wankhede and Srinivas Gopal in looking after the needs voluntarily, purely, without any appeal even. I don't have any prejudice against any person or organization, but honestly introspect yourself and pronounce whether what I expressed is right or wrong. अब ये लिख रहे हैं कि भाई वो ठीक है इनका अपना लिखना, लेकिन ये गलत कह रहे हैं। ऐसा नहीं, संगठनों की अपनी वो होती है, और वानकुड़े जी और वो जो भी कर रहे होंगे उससे ज़्यादा केस तो हम लोगों ने लगा रखे हैं। हमने 4 केस लगा रखे हैं, स्पेशल अलाउंस और पेंशन अपडेशन पर भी लगा रखा है, स्पेशल अलाउंस पर भी, पेंशन अपडेशन पे भी, ग्रेजुएटी रिकैलकुलेशन पर भी, और ग्रेजुएटी 1116 पर भी, और इस पर क्या नाम है जो 3 लाख से ऊपर लीव एनकैशमेंट का रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बेनिफिट दें, उसका भी हाई कोर्ट में चल रहा है। लेकिन ठीक है, इन्होंने अपना लिखा है तो अब आगे कहते हैं आई डोंट हैव एनी। अच्छा, ये कहते हैं पब्लिक डजंट हैव सिंपैथी ऑन PSB रिटायरिंग एंड दे आर नॉट रेडी टू बिलीव दैट PSB पेंशंस आर डाइंग इन द absence of revision. Is it not our mistake? Even government is also in the same opinion. Who is responsible for this misconception? We know the truth, but we don't have guts and capacity to accept it. Our pensioners and retirees issues are solved, then we awake from deep slumber of the non-challenge, insincerity, lack of commitment, and inconsistency in approach. Then only it is sold. Lies in our favor, but we are strongly in favor of UFBYB and the immediately money, whatever and wherever from it comes, it in the form of ex gratia, when law is directing us to clinch the benefits in the respectful and ethics way. Most of our leaders and members on the unethical misguidance are yearning for cheap ex gratia by viewing pension revision deeply in the grave. ये गलत कर रहे हैं बिल्कुल। अब ये इनका अपना मत है, ऐसा नहीं है। लोग एक्स ग्रेशिया का सब विरोध कर रहे हैं, और बहुत जगह ये इसका कहा भी गया है और लिखा भी गया है, नोटिस भी भेजे गए हैं, ऐसी बात नहीं है। और फाइनेंस मिनिस्टर को मैंने बहुत सारे लेटर और मेल लिखे हैं, फाइनेंस मिनिस्टर को, IBA चेयरमैन को, और DFS को, प्राइम मिनिस्टर को, और प्रेसिडेंट और स्पीकर लोकसभा और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को। तो ऐसा नहीं, लेकिन चलो इनका अपना मत है, ठीक है। धन्यवाद साथियों। नमन। RK त्यागी गाजियाबाद। भारत माता की जय। वंदे।